we have completed rotational motion, and now we are moving towards bulk matter, the properties of bulk matter. And in the properties of bulk matter or the mechanical properties of solid, we have mechanical properties of solid. Also, we have mechanical properties of fluids. In fluids, we have liquid and gases. And we have hydrostatics and hydrodynamics. So actually, initially we have to start stress. तो चलिए मैं उसी से start करता हूँ. Mechanical properties of solids. किसी ने कुछ लिखा क्या? बात क्या लिखा? सर मैंने लिखा था कि आज एक बार में पूरी रिकॉर्डिंग करनी है ना, टेलीग्राम पे तो आ जाता. कोई दिक्कत नहीं, पूरी कर लो. So you know very well, today actually we are discussing elasticity. आज elasticity को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. And what are the components are associated with it? Elasticity. ठीक है. So different components are available here which belongs to elasticity. Actually, if you want to change the shape of a body, जैसे आपको ये शेप बदलना है, देखिए तो ये शेप बदल गया, बदला, ये देखो शेप बदल गया. होता है ना ऐसे, पापा कई बार पकड़ देते हैं, क्यों पढ़ता नहीं है, इधर आ चल. तो शेप बदल दिया उन्होंने आपका. शेप बदल दिया मीन्स they apply a force on your body and that is nothing but deforming force. If you want to change the shape of anything, आप नींबू को निचोड़ रहे हो, उसका शेप बदल दिया आपने, देखो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया आपने. इन WWE जो पहलवान होते हैं वो सिर पकड़ लेते हैं ऐसा और उठा के उसको पटक देते हैं कि मैं तुझे डिफॉर्म कर दूंगा. इफ यू हैव ए स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज उसको दबाते हैं आप तो वो डिफॉर्म हो जाता है. होता है ना बच्चों. So the force which change the shape or tends to change the shape of a or configuration of a body is known as deforming force. उसे हम कहते हैं deforming force. Deforming force is tends to change the shape of a body और size, shape and size सभी कुछ कर सकते हैं. And when there is a deforming force, then also there is one another force develops in the body which is acting in the opposite direction and that is known as restoring force. ये भी आ जाता है restoring force. एक force की और develop हो गया, देखो. Restoring means the force which try to regain the body in its initial position. जैसे आप ये आपने मुझे ऐसे खींचा, छोटे बच्चे को हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं ना, आओ पप्पू कितना प्यारा है पप्पू, ऐसे खींचा आपने तो डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो शेप बदल गया. जैसे ही आपने छोड़ा, इट अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. व्हाई? बिकॉज ए फोर्स डेवलप्स हियर इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ which try to regain body in its original shape or size. किसी स्प्रिंग को आप खींचिए ऐसे तो you are applying a deforming force, stretching force. सर The body whose removal of deforming force if again regain its original shape or size, then that body is known as elastic body. And that property of the body is known as elasticity. तो हमारे पास पहले आई elastic body. Elastic body. So what is elastic body? Elastic body means
The body whose shape or size change when a deforming force is applied, and after the removal of deforming force, the body regains its original shape or size. Then such a body is known as elastic body. So इलास्टिक बॉडी कौन कौन सी हो सकती है आपके दिमाग में? रबर हो सकता है, रबर इज इलास्टिक बॉडी. और बताइए, एनी अदर इलास्टिक बॉडी? स्प्रिंग होती है इलास्टिक बॉडी, यानी मेटल की, जो भी कॉपर या स्पंज. किसी का भी. स्पॉन्ज हो सकता है, बिल्कुल सही है. और कोई इलास्टिक बॉडी आपके दिमाग में? एनीथिंग? क्वार्ट्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये नाम आपने शायद नहीं सुने हो, पर दीज आर इलास्टिक बॉडीज एंड दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली बोलते हैं सर अपन क्ले को बोल सकते हैं कि इलास्टिक बॉडी है वो? क्ले को इलास्टिक बॉडी कैसे कहोगे आप? क्ले को अगर आप तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा. आपने मेरा फोटो बनाया, आपने मेरी मूर्ति बना दी, और उसके बाद मेरे कान पकड़ के ऐसे हिला रहे हो आप, तो मेरा कान तो टूट जाएगा. आप डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप रिमूव करोगे तो क्या वापस जुड़ेगा? वो नहीं जुड़ेगा. तो क्ले इज प्लास्टिक बॉडी. क्ले कौन सी बॉडी हो गई? प्लास्टिक बॉडी. सो लिसन वेरी केयरफुली अगेन. इलास्टिक बॉडी, you know very well, the body regain its original shape or size after the removal of deforming force is known as elastic body, and the property due to which elastic body regain its original shape or size after the removal of the deforming force is known as elasticity. इस property को elasticity कहते हैं. So in the same way we have plastic bodies. So plastic body means the body does not regain its original shape or size after the removal of deforming force. आपको मम्मी ने बाथरूम में जबरदस्ती भेज दिया, जा नहा के आ, और आपकी इच्छा नहीं हो रही थी, अंदर जाके आपने बाल्टी को कोशिश की, देखे ये इलास्टिक है कि नहीं, और आपने उसको मोड़ दिया. तो अगर बेकार प्लास्टिक होगा तो वो तो टूट जाएगा, और नहीं भी होगा तो वो मुड़ जाएगा, और बाहर आओगे तो 2 चांटे और पड़ेंगे मम्मी के. ये किया तूने, इतना फिक्र, और तू इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी नहीं जानता. तो प्लास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज, लाइक क्ले. अभी इसने पूछा बच्चे ने, कोई भी मूर्ति बनी होती है क्ले की, तो वो वापस रिगेन नहीं करेगी ओरिजिनल शेप और साइज. वुड, they are also सर आपका कनेक्शन थोड़ा लूज है. यस सर. सर बहुत ज्यादा लूज है. प्लास्टिक बॉडी का कनेक्शन. अच्छा सर सिग्नल स्ट्रेंथ रेड आ रहा है, बहुत कम आ रहा है. दोबारा ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं फिर से. So today we are discussing properties of matter or bulk matter, and in which first of all we are discussing deforming force. Deforming force. Deforming force means when force applied on a body in order to change its shape or size, that is known as deforming force. It means with the help of deforming force we can change the shape or size of any body,
Any body means with the body whose shape or size we can change. And another force is acting here in the opposite direction, and that force is known as restoring force. So restoring force is always try to regain the original shape or size of the body. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि suppose I am applying a force here in this direction in order to change the shape of my cheek, then the shape changes, and this force is known as deforming force. And when I leave it, after the removal of deforming force, the body again regain its original shape or size, because another force is acting in the opposite direction. जैसे कोई हमें खींचता है तो हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और जैसे ही वो छोड़ेगा हम चले जाएंगे. जस्ट लाइक ए डोर को आप खोलोगे, कई बार ऑटोमेटिकली डोर क्लोजर होता है, वो अपने आप बंद होता है. इट मीन्स स्प्रिंग इज इनसाइड. तो व्हेन यू चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, then you apply force, and that force is known as deforming force. And in the opposite direction of a force, deforming force, another force automatically developed, and that restoring force try to regain its body in its original shape or size after the removal of force. Right? स्प्रिंग को आप खींचे ऐसे और छोड़ दे तो स्प्रिंग अगेन रिगेन कर लेगी अपना ओरिजिनल शेप और साइज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो हमारे पास कुछ बॉडीज होती हैं जिनका शेप चेंज हो जाता है, एंड द बॉडीज आर नोन एज इलास्टिक बॉडीज. इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज whose shape or size change when we apply deforming force, and after the removal of deforming force the body again regain its original shape or size. Just like rubber band आपने देखा होगा जो आप लगाते होंगे, चोटी में लगाते हैं या किसी को पैक करने के लिए लगा देते हैं हम लोग, कवर करने के लिए भी. रबर ऑल्सो स्पॉन्ज बच्चों ने बताया था. देन इसके अलावा मेटल्स होते हैं, जितने मेटल्स, ऑल मेटल्स दे आर इलास्टिक बॉडीज. एंड द परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज आती हैं हमारी फॉस्फर, ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज. These two are said to be nearly 100% perfectly elastic bodies. क्यों perfectly elastic अभी आपको बताता हूं मैं. And the property possessed by elastic bodies due to which they regain their original shape or size after the removal of deforming force is known as elasticity. इस property को बोलते हैं हम elasticity. Elasticity is the property of elastic bodies due to which they regain their original shape or size after the removal of deforming force. Similarly, we have plastic bodies. So plastic bodies are those bodies which does not regain their original shape or size after the removal of deforming force. जैसे कि ये चौक है, देखिए ये चौक, इस पे मैंने फोर्स लगाया, टूट गई. अब मैं बोलूं जुड़ जा, तो क्या जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी, यानी ये इलास्टिक बॉडी नहीं है. सिमिलरली वुड भी नहीं है. या आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जुड़ेगी, जरूर टाइम लगेगा उसमें, पर उसी समय नहीं जुड़ जाएगी. क्ले, पुट्टी आपने सुना होगा, दीवार पे पुट्टी लगाते हैं तो वो पुट्टी टाइट रहती है. वो आप सोचें कि अगेन इट रिगेन द सेम शेप और साइज, इट्स नॉट पॉसिबल. इवन एक ग्लास होता है, कई बच्चे कांच को सोचते हैं ग्लास इज प्लास्टिक और इलास्टिक. तो ग्लास भी इलास्टिक होता है, बट इट टेक्स आवर्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज. व्हेन हीट इज देयर देन इट्स शेप चेंजेस. ये गर्मी की वजह से हमको दिखाई नहीं देता, पर होता है.
And when heat is not there, again it regains, but it takes hours to set up again to its original shape or size. So plastic bodies are those bodies which do not regain their original shape or size, and examples are putti, wood, स्टोन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, और क्ले बोला बच्चे ने, क्ले भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट. एंड द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक भी तो लिखो यार, जिसका नाम है वो तो लिखो ही नहीं, प्लास्टिक. द बॉडी, the properties due to which a body does not regain its original shape or size after the removal of deforming force is known as plasticity. क्या बोलते हैं उसको? Plasticity. And remember, no body is perfectly elastic or perfectly plastic. कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है बच्चों जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक हो, बिकॉज आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग और अप्लाइड फोर्स द बॉडी टेंड्स टू चेंज इट्स बिहेवियर. अब आप सोचो कि रबर बैंड ले लिया आपने और खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, और फिर छोड़ दिया आपने, तो यू नो वेरी वेल कि स्टार्टिंग में रबर बैंड छोटा होता है और थोड़े दिन के बाद वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता जाता है. देखा है ना आपने, लड़कियां जानती है चोटी में वो लगाती है हेयर बैंड, तो हेयर बैंड पहले छोटा होता है, बड़ा बढ़िया लगता है, बाद में हेयर बैंड बड़ा हो जाता है, 2-2 बार घुमा के लगाना पड़ता है, कई बार रबर बैंड को 3-3 बार घुमाना पड़ता है, इतना बड़ा हो जाता है. ऐसे ही शेप ऑफ ये, अब आपने खींचना शुरू किया कि पंकज सर की तो इलास्टिक है, अब ये थोड़ी देर के बाद हाथ में आ जाएगा, अरे भाई इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक है, और छोड़ोगे भी तो वापस भी नहीं जाएगा, शेप ऐसे ही हो जाएगा. कार्टून्स में देखा होगा कई बच्चों के ऐसे ही पूरा बन जाता है बेचारों का. सो नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, बट phosphor, bronze or quartz, they are acting as a perfectly elastic body. And so the suspension fiber of galvanometer, जो galvanometer होता है, जैसे galvanometer ये देखिए, तो galvanometer में जो coil होती है उसमें suspension fiber होता है जिससे वो hang होती है. That suspension fiber is made up of quartz or phosphor bronze. तो इससे क्या होता है कि दे रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज वेरी फास्ट. आपकी घड़ियां होती हैं, घड़ी जो हाथ में पहनते हैं आप, उसके अंदर ज्वेल्स लगे होते हैं कि 24 ज्वेल्स, 12 ज्वेल्स, एंड दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, क्योंकि वो अपना शेप और साइज तुरंत रिगेन कर लेते हैं और टाइम में गड़बड़ नहीं है. खैर, नाउ व्हेन वी अप्लाई ए डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन द बॉडी, then that particular quantity which is related to the deformation is known as stress. Stress is force applied per unit area on a body, just like pressure, just like pressure. So stress is what? Stress is equal to deforming force applied on a body per unit area, per unit area. And you know very well, when deforming force is there, then restoring force is also there, and restoring force is equal to deforming force. So we can write restoring force per unit area. This is also stress. So the general formula of stress is force upon area. तो यूनिट क्या हो गई बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज ml/t-2 upon L square LLL ml-1 t-2, and which is equal to pressure, which is equal to pressure. And when stress is there, another quantity is also there. If you want to change the shape of a body,
अगर आपके पास सपोज यू हैव ए वायर हियर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज L एंड सपोज यू हैंग हियर ए वेट, एक वेट लगा दिया आपने. So what happens? It elongates, the length increases. Or suppose rubber band is here and if you pull it, then its length increases. Length increases means change in the dimension. आपके पास एक बैलून है, तो बैलून को आप क्या करते हो, ऐसे दबाते हो तो उसका शेप बदल जाता है, फूट भी जाता है कई बार. बॉल को, टायर को आप दबा के देखते हो साइकिल के कि हवा कम है या ज्यादा, तो शेप चेंज होता है ना, होता है शेप चेंज. And that shape change is related with stress. It means when you apply stress on a body, then another quantity is there and that quantity is known as strain. So strain क्या होता है? Strain means it is the ratio or it is the change in the dimension of a body. और इसको निकालने के लिए हमारे पास definition होती है. It is the ratio of change in dimension to the original dimension, या डायमेंशन की जगह कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन. Change in configuration to the original configuration of body. Correct? So strain equal to change in configuration to the original configuration. Correct? So now we are going to discuss how many types of stress we have and how many types of strain we have. तो मैं स्ट्रेस बताऊंगा, स्ट्रेन आपको समझ में खुद ही आ जाएगा. ये देखिए स्ट्रेस, एंड मैं स्ट्रेन भी लिख रहा हूँ, वो भी साथ साथ में करेंगे. ठीक है ना? So the first, suppose you have a wire here which is hanging with a rigid support, and when you apply load at the lower end, then its length increases, and this type of stress is known as tensile or normal stress. Tensile or normal stress. That is, in a tensile or normal stress, what happens? Just tell me. The length changes. We are applying deforming force normal to the area of cross section. ये area of cross section है इसका. ये देखिए, ये area of cross section है और इसके नॉर्मल लगा रहे हैं. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इधर, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. लेंथ इंक्रीज होगी तो इसके साथ कौन सा स्ट्रेन आ गया? स्ट्रेन हियर इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. यही लिख दूं क्या? दोनों अच्छा साथ में लेता हूं. ठीक है, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स delta L upon L, change in length upon original length. So when force, deforming force applied normal to the area of cross section, normal to the length of the wire, area of cross section, then there is a change in the length, and that particular stress is known as tensile or normal stress. Due to tensile or normal stress, longitudinal strain developed in the wire because length of the wire increases. अभी इतना था, अब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज हो गई है.
थोड़ी सी बढ़ गई, ज्यादा नहीं बढ़ती है। दिस इज कैपिटल एल एंड दिस इज डेल्टा एल, या चलो ये स्मॉल एल अपॉन डेल्टा एल। So this is delta L upon it. Okay. Suppose आप किसी को कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंप्रेस, जस्ट लाइक ए फुटबॉल और बॉल. So that is known as compressive stress. That is known as compressive stress. Or compressive stress actually it is just like pressure. It is just like pressure. So when ये देखिए ये बॉल है आपके पास and you are applying pressure from both sides, force from both sides, and due to this what happens? Its volume changes. वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका. किसी को आप दबाओगे ऐसे तो क्या होगा बच्चों? उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड उसके अंदर नाउ जो स्ट्रेन आएगा दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको समझ में आ गया होगा. कंप्रेशनल कि इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड in order to deform the cross sectional area. Cross sectional area जितना उसको deform करने की कोशिश कर रहे हैं. So there is a change in the volume. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा compressive strain, and compressive strain is equal to change in volume upon original volume, and it is minus delta V upon V. Minus delta V upon V. अब आप कहोगे माइनस डेल्टा V, माइनस क्यों लगाया? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ड्यू टू कंप्रेशनल स्ट्रेस वॉल्यूम डिक्रीजेस. यहाँ लेंथ क्या हो रही थी? लेंथ इंक्रीजेस एंड सो इट इज पॉजिटिव, एंड हियर वॉल्यूम डिक्रीजेस सो इट इज माइनस. Compressive is sometimes also known as hydrostatic. It is also known as hydrostatic. And the third one is shearing or tangential stress. एक और स्ट्रेस होता है shearing or tangential. Shearing means I think you know the word this shearing. कहीं सुना होगा आपने shearing? नहीं सुना है आपने? बताता हूं. आपने ये सुना हुआ है जो भेड़ होती है ना, शीप. शीप इज शीयर्ड. शीप के जब बाल निकालते हैं तो ऐसे शीयर्ड करते हैं, जो मशीन चलाते हैं उससे. तो खैर आपको वो नहीं क्लियर हो रहा होगा, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है. शेयरिंग स्ट्रेस के लिए द वन सरफेस इज फिक्स्ड. ये देखो अभी ये ऐसी पोजीशन में है. This is the position, okay, and now I am applying tangential force ऊपर में ऐसे. देखो sheared हो गया. नीचे वाला फिक्स रहेगा, आगे वाला थोड़ा आगे चले जाएगा. ये sheared हो गया. देखो हाँ आपने sometimes you have seen Tom and Jerry. Tom and Jerry में टॉम कई बार आधा हिस्सा उसका आगे रह जाता है और आधा पीछे. Sheared. ये देख their body is sheared now. The body is sheared. The one surface is fixed. So tangential आप लिखें when tangential force acts on the surface of a body, when tangential force applied on one surface of a body, keeping other surface fixed, then this is called then body is said to be sheared.
then body is said to be sheared and this is known as shearing stress. ये shearing stress है। देखो ये ऐसी थी सरफेस, अब ये सरफेस ऐसी हो गई, यहाँ इधर चली गई और यहाँ थीटा आ जाता है, ये बेचारी सरफेस ऐसी गई, यहाँ भी आगे चली गई, ये एंगल बन जाएगा एंड दिस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेन। इसमें अब जो स्ट्रेन आएगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? टेंजेंशियल स्ट्रेन। एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज थीटा, और थीटा होता है L अपॉन डेल्टा L। इतना चेंज हुआ डेल्टा, आर्क अपॉन रेडियस, यानी सॉरी डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L, ये भी डेल्टा L अपॉन L ही होगा। हियर L इज चेंज इन दी पोजीशन, ये यहाँ थी अब यहाँ आ गई, ठीक है, डेल्टा L चेंज हो गया। ओके, सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर ऑफ टेंसाइल, नॉर्मल, कंप्रेसिव एंड शीयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब मिस्टर हुक आए, उन्होंने एक लॉ दिया, HOOKES, हुक्स लॉ। उन्होंने बताया कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। इट मीन्स whatever be the load applied, then in the same way there will be extension. अगर आप स्प्रिंग में कम वेट लटकाओगे तो कम लेंथ इलांगेट होगी, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा इलांगेट होगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर फोर्स मोर एलोंगेशन। ये देखो थोड़ा सा खींचा कम हुआ और ज्यादा और कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर, जीभ बाहर निकालो निकालो, कितनी निकालोगे भाई, हाथ में थोड़ी रख दोगे निकाल के उसकी भी एक इलास्टिसिटी है, नहीं तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट, और वो बाहर ही आ जाएगी हमेशा के लिए। सो बी केयरफुल। इसीलिए कहते हैं अपनी जबान का उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले कई बार फंस जाते हैं। और ये बच्चे बहुत समझते हैं हमारे 11-12 के, क्योंकि ये मैच्योर होने वाले होते हैं अभी, तो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों का। और अभी एक और चीज सुनने में आती है कि बच्चे आजकल वीडियो गेम बहुत खेल रहे हैं, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं समझाना चाहूंगा कि वीडियो गेम अगर आप अभी खेलोगे तो बाद में वीडियो गेम खेलने की इच्छा तो रहेगी नहीं, और वीडियो गेम खेलने क्या मोबाइल की रिचार्ज करने के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि जब कुछ पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, सर्विस नहीं करोगे तो ये चीजें करोगे कहाँ से। कहते हैं कि अभी अगर आपने मजे करे, कहते हैं ना कि जवानी में जो सोते हैं बुढ़ापे में वो रोते हैं। कई बच्चों को बहुत मजा आता है सोने में, क्योंकि रात रात भर वो वीडियो गेम खेलते हैं और फिर दिन भर सोते हैं। तो डोंट डू दैट बच्चों। अभी आपकी उम्र है, इस उम्र में आप पहाड़ को भी काट सकते हो और रास्ता निकाल सकते हो, इतनी एनर्जी होती है आपके अंदर। बट डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन प्लेइंग वीडियो गेम। अगर खेलना भी है तो एक थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट का टाइम फिक्स कर लो, ये नहीं कि दिन भर उसी में लगे हुए। फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो रिक्वायर्ड, नहीं तो ये बॉडी काम नहीं करेगी बाद में, समझ रहे ना आप लोग। सो हुक्स लॉ गिवन दैट एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, और मिस्टर यंग आए, फिर यंग ने आके इसको चेंज कर दिया। यंग मतलब थॉमस यंग, और यंग ने बताया, बोले देखो मैं आपको अच्छी चीज बताता हूं। उसने कहा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो कुछ भी नहीं किया, वही चीज थी, समझने वाली बात थी कि एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेन और लोड मतलब स्ट्रेस। Whatever stress you are applying, you are getting the same strain. कई पेरेंट्स की शिकायत ये भी है कि बच्चे वीडियो ऑन करके नहीं बैठते, और ये मैं भी कहता हूं आपको बार बार। जैसे हमारा
कुशाग्र टोकीकर इतना शानदार फोटो लगाता है अपना बैटमैन वाला और चश्मा चश्मा लगा के, मजा आ जाता है। यथार्थ ने चालू कर लिया, देखो कैमरा, ये कुशाग्र आ गया, देखो कुशाग्र आ गया। अरे तुम लोगों को पहचानूंगा नहीं तो किसको पढ़ा रहा हूं? Stress is directly proportional to strain, and if you have to write here equal to, so for writing equal to you have to write here a constant लगाना पड़ेगा। यानी stress upon strain equal to E, and E is a constant, and this constant is called coefficient or मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कितनी बढ़िया चीज लाया मैं, यंग्स मॉड्यूलस। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज E, and this E is a constant. It is called coefficient or modulus of elasticity. उन्होंने बताया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब 3 टाइप्स के स्ट्रेस है, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो ये भी 3 होंगे। अरे होंगे ना भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन की शादी हुई तो उनका एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मॉड्यूलस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये देखो, ये पति पत्नी अलग थे, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो इनसे जो बच्चा हुआ उसका नाम हुआ यंग्स मॉड्यूलस। क्या हुआ? यंग्स मॉड्यूलस। तो देखिए Young's modulus is equal to normal stress upon longitudinal strain। इनसे बोले हमसे यंग्स मॉड्यूलस बना, तो इनसे पूछा गया आपका फार्मूला तो बताओ, तो बोले अभी बताते हैं फार्मूला। कैसे बताएंगे फार्मूला? देखिए, Young's modulus नॉर्मल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। सो y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। इसको और ठीक कर सकते हैं, एफ इज एम जी, एल इज पाई आर। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। सॉरी, वो बैटरी लो हो रही है। और इसकी यूनिट क्या होगी जरा बताएंगे आप? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम एज स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेन डज नॉट पजेज एनी यूनिट। आपको याद होगा स्ट्रेन मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल, मीटर अपॉन मीटर यानी कुछ नहीं। इट मीन्स नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बिकॉज इट इज a ratio, it is a dimension। कहाँ गई spelling? Dimension। Strain does not possess any unit and also does not possess any dimension because it is a ratio। तो Young's modulus जो है, its unit is also same as stress, क्योंकि strain की तो यूनिट होती ही नहीं है, तो स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वो इनकी होगी। Now कमिंग टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो इन दोनों की मैरिज हुई। अब तो इनसे पूछा कि क्या बनेगा भाई बताओ, दोनों की शादी कर देंगे आपकी? तो वो बोले हम बनाएंगे कौन सा? हम बनाएंगे बल्क मॉड्यूलस। क्या बनाएंगे हम? बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस बी होता है, एंड पुरानी बुक्स में देखेंगे तो के मिलेगा, and it is equal to compressive stress upon compressive strain। and compressive stress याद है आपको? फोर्स अपॉन एरिया हमेशा, and this is minus delta v upon v। वीडियो and if we are हो रहा है, as we are applying here pressure, तो फोर्स अपॉन को फोर्स को प्रेशर कह देते हैं, तो माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। एंड फॉर द लास्ट शेयरिंग वी हैव मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। लास्ट शेयरिंग के लिए हम क्या लाते हैं बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एंड
this modulus of rigidity is given by eta, which is shearing stress upon shearing strain. So shearing stress वही normal, and this is theta. So F upon A theta. So we have three types of modulus of elasticity: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. Okay. So next time we are going to discuss stress and strain graph. ये मैं homework भी दे रहा हूँ, आप बनाएंगे. Discuss stress and strain graph, and then we are going to discuss applications of elasticity which are very very important. तो बैटरी डाउन हो रही है, मतलब डिस्चार्ज हो रही है.